मैं especially fell in love with landscape paintings. Hip hop has never been this interesting. अभी last decade में तो I wouldn't say अभी peak पे है. Yeah, हुआ ये कि nobody was there for hip hop. Everybody was for Anuj Jain. तो बीच में 2-3 ऐसे हाथ उठते देखे मैंने कि जाओ वापस जाओ लाइक अरे भाई. आप रैप की ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हो तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर एमिनेम. इंडियन आर्टिस्ट को 1000+ सॉन्ग्स करने पड़ते हैं टू मेंटेन हिज करियर, व्हिच इज सच अ वास्ट डिफरेंस. जितने भी लोग टी सीरीज के साथ साइन हैं, दे डोंट गेट दिस रॉयल्टी. अरिजीत सिंह यार, अरिजीत सिंह ने 500+ सॉन्ग्स कर दिए पर अभी भी उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है. वो अभी भी अपना खुद के शो पे ही डिपेंडेंट है टू गेट दैट मनी. एक बुक है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, उसमें यही बोलता है कि जो तुम सोच रहे हो ऑलरेडी हो चुका है. तो यू हैव टू जस्ट अपने पर्सपेक्टिव से उसको बोलना है. Yo guys, welcome to another episode of the Everything You Should Know podcast, and today we have MC Rishabh, MC Utkarsh, DJ Utkarsh and Astigya. So guys, let me introduce our guests first. We have Utkarsh, musician है और कहाँ से हमने क्या किया है? मैं बताऊं. Please do that. तो बेसिकली पहले मैंने इंदौर में ही सीखा है म्यूजिक. देन आई वेंट टू AR रहमान्स कॉलेज, दैट इज KM म्यूजिक कॉलेज जो चेन्नई में है. देन आई लर्नड देयर एंड देन आई टॉट देयर फॉर लाइक 4 years something. Okay, nice. And we also have Astigya Tiwari, who is a rapper based out of Indore only currently. And like I have this feeling, Astigya अगर सही हो गया तो just pay me some money that he is going to get big in the next 5 years. And yeah, I mean like the last video Molly, right? Yeah. Molly, like one of the bangers. इंदौर में अगर हो तो please, of course हम लोग लिंक डालेंगे ग्रुप पे. Yes, ग्रुप पे नहीं, डिस्क्रिप्शन. Yes. So let's start. Astigya, कैसा चल रहा है? All good, man. All good. Working on some new music right now. Working on some EP. Hopefully, it comes out pretty nice. Okay. But I have heard the new one, the Hindi English mix one. जो तू लिख रहा है भाई, crazy fucking track. और उसका वीडियो आने वाला है कि नहीं आने वाला है? Nah, bro. Not music. No videos right now. I'm just working on EP. If people like the songs, then I'll work on music video. Because from Molly's music video, I've realized that until and unless you're already big, there's no कोई प्रॉफिट नहीं है if you're putting a lot of money into music videos. It's better if you get big first, then you give the kind of content अपना audience जिस हिसाब से उस हिसाब. Dude, the Molly video was like amazing यार, amazing. एकदम properly shot, एकदम complete project. ऐसा लग ही नहीं रहा है वो कि इंदौर में हमने कहीं शूट किया. और आस्तिक क्या नहीं किया वो? नहीं. I always hated Astigya school time में क्योंकि like he was very good at studying, right? तो हम लोग को जहाँ परमिशन लगती थी फुटबॉल खेलने के लिए, Astigya एकदम free mind आता था कि अरे bro क्या एग्जाम है ये. उसके बाद like you started painting as well, right? Yeah. And amazing. तो यार ये like टॉपर से रैपर कैसे है? टॉपर से पेंटर से फिर रैपर. Yeah. ये कैसे है? So I've always been into arts. You've always seen that. I was always into drawing and all, and I started working as a video game artist since the age of 15, I guess. Really? Yeah. कौन कर रहा है इसका? हाँ, तो till 12th I was like everybody was choosing their fields कि क्या करना है. So for me the next step was like let's learn 3D art. Let's go into that. I always wanted to be a concept artist. Video games के लिए I'm designing characters, battleships. If you have seen Halo 5 or you Yes. तो उसके जो मेन आर्टिस्ट है, if you see their art books, they have designed कि battleships कैसे दिखेंगे, how the levels are going to look like, and I was always fascinated by that. I was like, bro, this is something I want to do. And somehow I ended up in a painting college, one of the finest art colleges in the world. And as soon as I got there, I was like, fuck, this is different level thing. And then you go to Italy, it's full of beautiful sculptures, it's like art capital हमेशा से है. And? So I and what? Bro, that's entire. So I was there for art, and I fell in love with art there. I especially fell in love with landscape paintings. That's also there. Women are good views always. उसके बाद I came back to India. I was pursuing it for a while, but I feel like when I was doing it in Indore, there was not so much scene for paintings, and it wasn't as grown up as it is now. Soul Bazaar and all these events are like helping it grow. And right around then, COVID was just like उसका cases बढ़ ही रहे थे, and उसी समय I was also going through a phase like fuck painting, I don't want to do it anymore. And I don't know how it happened. I just got into rapping. I was more into poetry. I've always been into writing from like school times. I wrote my first novella back in 10th class. So I was always into writing.
So right around that, then poetry से I switched to कि ठीक है poetry को as a spoken format I have to instrumental कुछ भी अपन ले लेते हैं hype like motivational video के पीछे जैसे music रहता है. I started doing poetry on that and slowly switched to beats and उस पे rap कैसे करना. I did not have any idea कि beat पे कैसे rap करते 1 2 3 4 whatever that was. I was like I don't know क्या जा रहा है. एक one of the parties हम दोनों hang out कर रहे थे और ये मुझसे first time एक म्यूजिक का सॉफ्टवेयर होता है FL स्टूडियो, ये मुझसे पहली बार उस पे बात कर रहा था ना. I was like अबे मतलब आस्तिक के तेरे को कहाँ से इंटरेस्ट आ गया? तो यार I don't know, I just feel like going about it. And then हमने काफी लंबा इस पे डिस्कशन भी किया था कि FL में ऐसा होता है वैसा होता है everything, and that's when he was starting out. And मैं तो कई बार चेंजेस भेजा था नहीं वो like bro ये थोड़ा ऑफ बीट जा रहा है. like okay यार I remember. उसमें लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा है ना म्यूजिक में. हाँ मतलब Bro, स्पेशली रैपिंग में भी एक तरीके से any art form you pick it's just a bubble in itself. You keep exploring and just gets bigger and bigger कि shit इसमें भी ये भी सीखने को ये भी. अभी now I'm learning कि यार यहाँ पे flows में भी बहुत तरीके के flows हैं. And then even you hear rappers जो already established हैं, they say something and those same lines can mean 3 or 4 different things. So I'm like ठीक है now I have to incorporate that in my मेरी vocabulary में जब. So it's like any art form you pick. रैप एज अ कल्चर है रास्ते के जो कि कल्चर हमारा नहीं है. लाइक ये कल्चर ब्लैक लोगों का है राइट. एक दूसरे कल्चर को अडैप्ट करना और वो भी इस कंट्री में जहाँ पे वो कल्चर अभी उतना ज्यादा नहीं हाई हुआ है अभी भी चल रहा है मतलब प्राइस पर है. बहुत ज्यादा अजीब सा नहीं लगता कि यार यू ऑलवेज फील लाइक अ गेस्ट. Yeah, I never started for culture anyway. I never started because I wanted to rap. I always wanted to express. That's been my. I feel like जो भी introvert है, they pick some art form to express themselves. Painting was that. Once painting was going away from my life, I picked music. So it's always been about expression. I never wanted to be a musician. I never wanted to be a like big time rapper. But now it's happening on its own because I'm mastering my craft slowly. Now I do feel like the more अभी rap कुछ ज़्यादा ही big हो गया. So I do feel like a lot of things that I'm doing, like even designing T-shirts like this or anything. I do feel like culture वाला जो concept है, I feel like कहीं ना कहीं it exists, but again that's not my focus. My focus is making good music now and expressing myself. So yeah, how did you get into music? यार मैं तो बचपन से ही था म्यूजिक में. Long as I can remember, मुझे बचपन से ऐसे जैसे समर कैंप में डाल देते हैं ना तब मुझे पियानो में डाल दिया. तो that's when I started. But like when I was in 10th standard around तो मुझे तब proper instrumentation में इंटरेस्ट आने लगा. वो that's a very different field from him क्योंकि अभी जैसे ये lyrical acrobats की बात कर रहा है, मैं उसके पीछे जो चल रहा है म्यूजिक में कि what is what, which instrument is what, why does it exist in certain layer, मुझे उसमें इंटरेस्ट था. तो I was learning a lot of guitar solos और सारे instrumentation जैसे like I don't know if you understand this thing, there's string segments and then there's bass guitars and then there's drums. हाँ तो like उसका सबका basic instruments उसका सबका mix is music. Usually वो बहुत ही अपन ना उसकी तरफ इतना फोकस नहीं करते, although that is what's making the music, आपका vibe उसी से बन रहा होता है, right? Of course ये बात है कि अगर ये कोई रैप कर रहा है और वो बहुत एनर्जेटिक रैप है, वो किसी स्लो पेस सॉन्ग पे नहीं करेगा, राइट? तो वो how is someone creating that exactly? तो मुझे 10th 11th स्टैंडर्ड में अराउंड उसमें इंटरेस्ट आने लगा. तो I was more into instrumentation, more into background music and like movies के background scenarios and stuff like that. And where is my thank you? Because जब हम लोग 5th या 6th क्लास में थे तब फर्स्ट टाइम ऐसा आपको क्लासेस जाने अच्छा तू उसका पहला फैन था? नहीं मैं मतलब क्या बोलूं, ये सिंथेसाइजर बजाता था ये एंड मैं दूसरी जगह बैठा था. हमारा ग्रुप एक ही था तो मैंने इसको एक बार मार के लेकर आया था, तू चुपचाप इधर बैठ गिटार में. एंड देन ही पिक्ड अप गिटार लेकिन मैं कहीं और चला गया टाइम पास करने के लिए. फिर तू सिंथेसाइजर पे चला. आई वाज वेरी गुड बॉम्बो प्लेयर. बॉम्बो बजाने मैं माना नहीं, मैंने भाई तूने एक बार स्विच करा है. बढ़िया ऋषभ बोंगोस बजा रहा है स्कूल में. नाइस. इट्स अ जोक. Seem to imagine. भाई तूने बॉम्बो बजाया. Don't be embarrassed of your good. But coming back to the music, अभी तुम लोग कहाँ पे like usually तुम्हारा क्या ग्राउंड है म्यूजिक को आगे ले जाने के लिए? YouTube है like through close reference. Like as in the business side. हाँ. I think Astik should go. हाँ मतलब business side मतलब अभी कैसा रहा मतलब YouTube पे जो एक मॉली
जो ने निकाला है अभी, I think that is one of your biggest project अभी तक, है ना? it's been the तो biggest. उसका क्या आर्क रहा, उसका क्या जर्नी रहा? यार when I made Molly और उसका रिस्पांस काफी अच्छा रहा था, and I was like यार the vision I have in mind, I really want to make it a big project because I feel like if the music video is really great, the song can blow up because the song is that good. That's what I felt. Yeah. But it never blew up to that extent. But making the music video, it was so much fun, dude. We put a lot of money into that. And मेरा vision ये था कि इसको international level पे बनाना है. I was inspired by G-Eazy, Jack Harlow, इन सब music videos. I was like something has to be like that. So we just set a new standard. It was fun, man. बहुत सारा we had equipment from Mumbai. We had बड़ी टीम, मतलब 15-20 लोगों की टीम थी. I felt like a fucking celebrity that day कि यार सब जगह कैमरा आ रहे हैं, हम acting, just great set all around, cars है हमारे पास, लड़कियां भी हैं and all that. It was good. But अभी music को business side से I would say कि you have to do everything to push it on social because I feel that's the way people discover you the most. But at the same time I feel like offline has to be just as big. Because word of mouth and people experiencing your music firsthand, I think that's the biggest marketing tool. और इसमें लक का क्या पार्ट है? I mean, Definitely. लग तो होता ही है यार. You never know कब कौन सा गाना वो हो जाए. एक bias भी बोलते हैं, like there's some music bias or something where like हमको ऐसा लगता है कि because there are a lot of famous musicians और बहुत लोग बहुत powerful हैं, अगर मैं करूँगा तो मेरा भी हो जाएगा. But it's built on 1,000 dead careers, you know. Like one person is built on 1,000 dead careers. कितने लोगों ने उसमें छोड़ दिया म्यूजिक, हट गए, ये हमको अंदाजा नहीं होता है. तो there's a big luck factor in this. बहुत huge actually. वो शर्ली सेठिया का कितना लग लगता है वो? She's cute. She's cute. She's not talented, but She's talented. Not mine. No, the first thing was she's cute. That's a fact, man. I'm spitting facts right now. Yeah. No, but coming back to the inspiration wala thing, because I was gonna ask, like, what are your inspirations personally? Like, who did you get inspired from, like the artists and the songs and everything? यार मेरा जर्नी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. मैं इतना सॉर्टेड कभी भी नहीं था कि मुझे रैप म्यूजिक पसंद है तो आई एम गोइंग गो फॉर दैट. मैं बहुत सारे म्यूजिक जॉनर्स से निकला. मतलब आई हैव प्लेड बॉलीवुड गिग्स फॉर मनी ऑफ कोर्स बिकॉज़ इंडियन म्यूजिक सिनेरियो में like you have to kind of go into that to earn decent living out of this if you don't have other things going, you know. तो बहुत पहले बॉलीवुड प्ले किया, फिर थोड़ा मतलब composition sides में गया मैं, and then but my right now my shit is songwriting, like acoustic, John Mayer type shit, you know, Ray LaMontagne and all of. The problem with this is कि they are also not that big, you know. They are big somewhere, Yeah. but not throughout the world, you know. तो ऐसे बहुत complicated है, like music बहुत ही subjective हो जाता है ऐसे, you know. And for you? Eminem was the guy that introduced me to rap properly. Yeah. हम लोग Same. 8th-9th क्लास में एक French section था, उसमें these like all the cool kids were like Eminem, we are writing now, we are spitting. So I was introduced through them, and then I started writing उसी समय. The songs were really bad, but then again like कॉलेज के बाद आई स्टार्टेड एमिनेम को अच्छे से सुनना चालू किया कि ठीक है दिस इज व्हाट ही इज सेइंग और राइम स्कीम ये है. रॉयस द 5'9", जे कोल, आई वुड से G-Eazy is also my inspiration. I would say अभी Jack Harlow I'm listening because his sound is really different now. Amazing. Yeah, those. So guys. right now, like talking about all these big names, right now the biggest feud going on is Drake and Kendrick. Yeah. So what do you guys think about that? Bro, it's Like, what are your brutal opinions right on now. that? Hip Like- hop has never been this interesting. अभी last decade में तो I wouldn't say. हाँ, अभी like, इस बहुत time पे बाद है, feud हो रहा है yeah. कोई And अच्छा. rap battle ऐसा तो नहीं हुआ. Kendrick is dropping like every day. Yeah. हर दिन he's exposing Drake to a level that was never seemed possible. But even Drake is doing that. Like, he's also launching new songs Bro, every day now. Drake का ऐसा ही अभी उसका Family Matters करके आया. He posted हाँ, that. And he yeah. thought कि like I've won. उसके बाद Kendrick ने back to Kendrick back with दो 616 diss डाले. in And I'm LA, like, हाँ. dude क्या जिस तरह से expose करा उसने, I'm like fuck. But यार this Drake never के पीछे happened. यार कब से लोग expose कर रहे हैं, like Pusha T, like something like Yeah. उसका जो That was about his son. ना? Yeah. Yeah. Drake थोड़ा phony भी लगता है यार, मतलब. Yeah, but Okay. हाँ. बहुत subjective हाँ. है. मेरे को थोड़ा phony लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि. But yeah, for me, मतलब जब भी लोग बात करते हैं rap music की और इन सारी चीजों में, मुझे बस ये लगता है कि in the last 20 years, whenever you see एक award show आप जहाँ पे भी देखते हो,
नॉमिनेशंस में ड्रेक का हमेशा रहता है बिकॉज़ ही इज ऑलवेज देयर. यार, but- एमिनेम का पीक आया एंड एमिनेम अब नहीं उतना अच्छा एक रैपर जो यार बट आपको यू बैंगर्स दे. कैन कंपेयर अवार्ड शोज से कुछ ऐसे नहीं लाइक नहीं अवार्ड but शोज चिराग, ही नहीं, बिके हुए but- होते but- but हैं चिराग, चिराग आप अवार्ड शो से जज नहीं कर सकते हो, मैं जज भी नहीं कर रहा हूँ. बट अगर आपके नॉमिनेशंस आ रहे हैं इसका मतलब यू आर समवेयर ऑन द चार्ट्स. Yeah, he's relevant still, that's the Exactly. He was Yeah, relevant but- 20 okay, years then- back okay, and he's still relevant. हाँ but then awards is not the main thing I'm I'm saying. not Like, talking about awards. नहीं, I'm not awards talking- is like recognition. recognition हाँ, भी वहाँ पे international लोग platform. हाँ अगर वहाँ पे आपके नॉमिनेशंस में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये यू हैव स्टिल अ वेरी गुड कमांड ओवर इट. एमिनेम का रेन वाज व्हाट 8 years 20,000. like 8 years 2000. हाँ मतलब 2000 2000. ड्रेक तब भी वहाँ पे था और ड्रेक अभी भी है. ड्रेक का म्यूजिक अभी भी क्लब्स में बजता है. लोग अभी भी पर वो Eminem का भी बचता है तो नहीं, like नहीं bro. नहीं. Eminem does. bro does- but nah, nah. it's not at Superman that ले ले level या I दो get तीन it. और या वो एट दैट टाइम था अब उस नहीं टाइम है. में बहुत ज्यादा था बट अभी भी इतना वो लेवल नहीं ऑब्वियसली बट इट्स स्टिल देयर थोड़ा है. एक इशू ये होता है कि देयर आर पीपल हु लाइक वेरी प्योर शिट एंड देयर आर पीपल हु लाइक कैजुअल स्टफ लाइक हाँ. नहीं, but that's the अगर thing. आप रैप की ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हो तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर एमिनेम. आई कैन नॉट ठीक है. Like as a lyricist. हाँ. Yeah, as a lyricist man, he's doing the greatest things. He was. Yeah, he was. He was. Yeah. He still is. Like, उसका एल्बम आ रहा है इस साल ऐसा नहीं है. Drake is अभी हो सकता है इस पर बहुत hate मिले मुझे, but Drake is मिलेगा ही. बादशाह, you know. नहीं नहीं भाई. नहीं हाँ, हाँ, okay. मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि like his tracks can be played as like as a dancer. हाँ, fair enough. नहीं, that's his plus point. He can make bangers. He can make really good non-stop सुन ले और one dance क्या था भैया? हाँ, हाँ बादशाह वन का. टन. नहीं, नहीं. अरे ड्रेक का Bro, Bacha is not even close, bro. नहीं बट बादशाह इज लाइक बॉलीवुड ड्रेक. बॉलीवुड ड्रेक तो बादशाह क्लब्स में किसके no गाने no बजते no हैं? bro it won't क्लब में be. किसके गाने बजते हैं? Exactly भाई. क्लब्स में किसके गाने Bollywood- बजते हैं? अरे but that is नहीं यार, यार Drake- like Drake you can't compare with बादशाह bro अगर बहुत Drake से different compare है कर रहे हैं यार. तो Divine would be close, bro. हाँ, He can make हाँ. bangers. He can write well. Way better. Bro, नहीं, Drake का नहीं, pen game is यार, वो good. फिर भी Level, I think. नहीं यार बट मैं बस ये बोल रहा हूँ कि क्लब म्यूजिक इंडिया में अभी जो बना रहा है आफ्टर हनी सिंह इट्स बादशाह. और क्लब म्यूजिक में कहीं ना कहीं लाइक ड्रेक का हुआ है कि ही इज लिविंग दैट स्टाइल है. वो करता है पार्टीज. वो ही इज लिविंग दैट. वो कभी क्लेम भी नहीं करता कि मैं लिरिसिस्ट में मैं बेस्ट हूँ. हाँ, exactly. But it's good. ही इज अमेजिंग. उसका pen game is good. yeah. अगर वो Kendrick से beef कर रहा है, that means bro he has. Yeah, that it is level. at Top that level. But Yeah. that's the thing. That is a big Hate level. करने के लिए भी you need balls, man. yeah या मतलब Kendrick से थोड़ा तो मतलब कोई भी डर जाएगा भाई. अमेजिंग. like J Cole ने भी delete कर दिया bro. Yeah. बट जे को तो फिर भी यार लाइक ही इज वेरी सरप्राइजिंग. लाइक लिरिकली मेरे को कभी नहीं लगा था कि जे को उस लेवल पे जाएगा बट अमेजिंग वर्क. इसके अलावा यार इंडिया में क्या लग रहा है म्यूजिक का क्या चल रहा है अभी? भाई इंडिया तो बहुत ही होमोजेनियस है यार. मेरे को कभी समझ नहीं आता यहाँ का इंडस्ट्री. हाँ. Bollywood is constantly running. They are running because music is like ads for them. ठीक है, music is not money for them. It's ads for them. Because अगर वो 7 गाने बनाते हैं और 7 में से एक भी अगर हिट हो जाता है तो that's advertisement for the movie. It's not the song. बॉलीवुड हमेशा सॉन्ग्स उनके लिए वो प्रमोशंस में ही रहा है. ट्रेलर्स में Yeah. Because चैनल्स most पे. of the time if you see music का कई बार कोई लेना देना भी नहीं होता मूवी से. जो सॉन्ग है एक आइटम नंबर आपने बीच में फंसा कई दिया. बार तो उसका बॉलीवुड कोई में मूवीज का भी लेना देना नहीं होता. स्टोरी का ही लेना देना नहीं होता. But yeah, so that is the case. So that's why they pay a lot of musicians, the music directors, to they are basically paying for promotion. But apart from that, ऐसे जो लोकल म्यूजिशियंस हैं उनको वो सॉन्ग्स को क्लब्स में प्ले करके काफी पैसा मिलता है. ऑल्दो देयर इज लाइक अ बिग डील देयर कि उसकी कोई लाइसेंसिंग नहीं है. अगर अभी इंदौर के क्लब्स में हम जाके कोई भी बैंड को सुन रहे हैं, उनने कोई ओरिजिनल आर्टिस्ट को कोई पैसा नहीं दिया. ऑल्दो वी आर यूजिंग देयर वर्क. Yeah. तो अगर मैं इस समय टेलर स्विफ्ट का कोई गाना मेरी स्टोरी पे डाल रहा हूँ तो टेलर स्विफ्ट इज गेटिंग मनी फॉर दैट. इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. इंडिया में आई थिंक there's this system, I don't know what it's called, but इसे one time payment होता है और एक royalty, right? Royalty होती है. Royalty is every time your music It's played, you get something, You get हाँ. some percentage of that money. India is just one time payment. You make the money, you get this
lump sum amount and you stick And not just for like small artists, like जितने भी लोग T series के साथ sign हैं, they don't get this royalty. उनको But that's so weird, bro. Like, imagine if the writer and musicians of Chaiya Chaiya had royalty, they would have been like millionaires by now. like गुलाबी आंखें, like it's हाँ, like ये सब, हाँ. But It's been remixed so many times. नहीं, they are not. And T series पे तो यार काफी complications है भी कि मतलब they suck everything from the artist. आपको one time payment मिलता है, उसके बाद अगर आप अपना खुद का शो कर रहे हो तो They get the money. हाँ, then आप money बना. अरिजीत सिंह ने 500 प्लस सॉन्ग्स कर दिए हैं, पर अभी तो उसको उसकी रॉयल्टी plus भाई हाँ मतलब जितने भी भाई वो और उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो अभी भी अपना खुद के शो पे ही डिपेंडेंट है टू गेट दैट मनी. भाई अंडरस्टैंड दिस, तू लेड ज़ेपलिन टाइप के किसी बैंड का अगर करियर देख रहा है, इट्स लाइक 4 or 5 एल्बम्स, ठीक है, 12 songs 15 songs 20 पर एल्बम, तो 60 songs के अंदर उनका करियर है ना, और आप उसको थोड़ा पुश करके 100 songs करो. इंडियन आर्टिस्ट को 1000+ songs करने पड़ रहे हैं टू मेंटेन हिज करियर, व्हिच इज सच अ वास्ट डिफरेंस इन जनरल ना. बट क्या इस चीज को क्या कभी सोचा है इस बारे में अभी कि वो बात की बात है? यार आई वांट टू गो इंडी रूट. अभी मैं किसी आर्टिस्ट का देख रहा था, ही सेड इफ यू मेक अ हिट सॉन्ग एंड इफ यू आर इंडिपेंडेंट योर लाइफ इज सॉर्टेड. तो अभी सोच रहा है कि मैं वो किसी कंपनी के साथ साइन अप. So, what do you guys think about music labels in India then? Like, where is that going? यार इट्स ऑल अबाउट डील, हाउ यू साइन द डील. अगर डील अच्छी है तो आई डोंट माइंड डूइंग इट बिकॉज़ आई नीड एवरी आर्टिस्ट नीड्स एक्सपोजर एनीवे. अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, इवन हिम, you see him live or if you hear his songs, it's amazing dude. But if you don't have the right exposure, उसका कोई मतलब ही नहीं है. पॉइंट ये भी है. Labels have network, labels have distribution system जो आम आदमी नहीं कर सकता. They can even get you shows at platforms that you did not even think possible कि तुम अकेले जा सकते हो. So if you can get, I'm even thinking कि यार 3-4 साल के लिए you can sign a contract, go big, then you can go indie. हाँ, true. Yeah. आपने कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स निकालिए टू गेट दैट मार्केट और उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद आपकी ऑडियंस है. बट यार पॉइंट सही है ऐसी, स्पेशली लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट बिग टी सीरीज के अलावा आई डोंट थिंक इंडिया में उससे बड़ा कुछ भी है म्यूजिक में. मतलब इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेबल तो वैसे ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा, एकदम आयरॉनिक हो जाएगा, पर देयर आर ऐसे टी सीरीज के नीचे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स को मैनेज करने वाली कंपनीज जो कि कर रही है, जैसे पागल है या समथिंग लाइक पागल है ना, दिस अदर वन पागल है कंपनी का नाम. या इट्स द लेबल. आई थिंक प्रतीक कुमार इज पागल. ऐसे भी हो From that label मतलब. मेरा करियर अभी भी मैं चाहता हूँ कि बन जाए. और उसमें प्रतीक को आड़ यार मैं जो चीजें बोली है तो बस ये नहीं हो सकता कि मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा. नॉट ऑन द मतलब like हाँ, like what is your opinion on Pratik Kuhad? Like कुछ तो बता ऐसे प्रतीक क्या. को आड़ एंड टेलर स्विफ्ट. देख एक सेकंड, अब फिर लूप में फंस गया यार. ओबामा की भी प्लेलिस्ट में है ये दोनों. मतलब टेलर स्विफ्ट तो बहुत लोगों की प्लेलिस्ट में है. I'm just saying like notable बहुत names. लड़कों ने उसे प्ले भी कर दिया है. दैट्स हिज एंटायर डिस्कोग्राफी. Comments आने वाले हैं बहुत यार. सॉन्ग है उसका यार भाई, ठीक है, वो एक ही सॉन्ग को लूप पे बनाते जा रही है, which is मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ. That's all she tells every time. But what are you listening to these days? Taylor Swift of course. And what about you? Bro, अभी तो Kendrick and Drake का ही चल रहा है. Apart from that, Royce the 5'9" का I started listening. I'm listening to a lot of house music now. I'm thinking of mixing house music with rap someday very soon. Let's see how that goes. So what do you think about the Indian rappers? Like, could you rate the top 5 Indian rappers for you right now? You would have been like, yeah, fuck hip hop, Indian hip hop, it's so bad. But now you Up see it's the level growing, of yeah, writing, yeah. the level of music. Azadi Record has completely revolutionized everything. Krishna is there, Divine is Yeah. Yeah. See them Amazing out. pen game, भाई. बहुत प्यारा game pen game. And international level पे बन रहा है यार. I think Krishna and Divine, they are collaborating with international artists. Yeah. But जो भी हो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहला रैप आर्टिस्ट बॉलीवुड में कौन आया था. That was Snoop Dogg. बाबा सहगल. Snoop Dogg. Sing is king. Yes. ये दोनों के नाम का कोलैब करा दो, बाबा सहगल and Snoop Dogg. Collaboration है, but I think it's Baba Segal, then Bohemia, then Honey Singh and Badshah. Right? Yeah, good. Yeah. You're forgetting that guy. Amplifier वाला. Imran. He was like. But he was not a rapper though. Yeah, He was a singer, no? कहीं ना कहीं उस टाइम पे रैप में आप Somewhere कंसीडर कर in the सकते हो middle. उसको. हाँ. पर क्या हुआ क्या उसका? I mean उसके 2 गाने बहुत ज्यादा ब्लू किए. 2 नहीं 3-4 थे.
एक था वो बेवफा एम्पलीफायर था, बेवफा था। एम्पलीफायर तो भाई हर जिसका भी दिल टूटा था उस टाइम में लाइक कि ब्रो उसके गाने लाइक अभी भी सबको याद रहते हैं, लाइक देयर इज नो वन हु डजंट नो द सॉन्ग्स। दैट इज ट्रू। इट्स क्रेजी। अभी you have opened like you opened for somebody right? अनुज जैन एंड यश राज। how was it like कैसा था एक्सपीरियंस? भाई मेरा तो दिमाग फट गया था लाइक इतनी पॉसिबिलिटी है इंदौर में भी। अराउंड 5000 पीपल टर्न्ड अप फॉर अनुज जैन। लाइक कि भाई इसका स्टार पावर ऐसा, मैं आई हैव नेवर मेट सो मेनी सेलिब्रिटीज बट पहली बार मैंने देखा कि इतना पुल कर सकते हैं इंदौर में भी। पीपल वर लाइनिंग अप इवन इन द एलिवेटर के बाहर भी कि हम एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे 10-15 हज़ार बट लेट अस मीट है। लाइक ओके अगर इंदौर में ये पॉसिबिलिटीज है तो व्हाई नॉट। बट गुड उसके पहले आज के उसके पहले स्टेज पे जाने के जस्ट पहले बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज तूने डेवलप की है राइट? गो एंड लाइक 5 और 6 हज़ार लोगों को हुक रखना, आई मीन स्टेज प्रेजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस शो को चालू करने से पहले थोड़ा सा भी लग रहा था कि फक डूड पेंटिंग ही बना लेता। यार डर तो लगता है हर शो से पहले, बहुत डर लगता है बट एज सून एज यू स्टार्ट परफॉर्मिंग देन इट्स लाइक कि ठीक है अब आई एम जस्ट एंजॉयिंग। अब जो भी जिसको भी जैसा सोचना है आई हैव टू डू माय सेट, आई हैव टू डू इट द बेस्ट आई कैन एंड जस्ट। कैसा रहा? गुड फीलिंग मैन। वहां पे हुआ ये कि nobody was there for hip hop, everybody was for अनुज जैन। तो बीच में 2-3 ऐसे हाथ उठते देखे मैंने लाइक अरे भाई अब तो हो गया, बस सेट करते और निकलते हैं। मतलब बड़ा ऑड ही सेटअप है, लाइक people are there for acoustic music. There's like this hip hop artist beginning the entire thing. It's like a but the thing is to get your face out there. Yeah. Awareness wise I think it's good. And plus you also get used to it ना यार, कहीं 10 लोगों ने तो सुना होगा। हाँ लाइक कोई ना कोई तो रिकॉल करेगा कि उसको उधर देखा तो लेट्स ट्राई हिज दिस इज हाउ आई गेट यार। मतलब मैंने जितने भी work is work man. ना वो करना ही है आपको। आई मीन उसके लिए नहीं था जो खड़ा था वहां पे, मैं कि भाई क्या है पर क्या पता लाइक व्हेन ही इज लाइक वेरी फेमस दिस गाय विल लाइक थिंक कि लाइक ओह इसको भगा रहा था मैं एक दिन ऐसे। बट सही में भी अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक अभी फिर क्या सोचा है म्यूजिक को लेके भी क्या सोचा है? भाई मेरा प्लान तो ये है कि आई एम ओनली फोकसिंग ऑन माय म्यूजिक नाउ, नो कवर्स नथिंग। तो आई एम आल्सो वर्किंग ऑन अ बिजनेस ऐसे साइड में to push money into my career of music as well, you know, because there's when you think about music business now there's a lot of initial capital, you know, you have to push a lot on, it's very expensive or it's very, and there are like I don't know if there are returns. अगर मैं एक मोटा मोटी नंबर बोलूं कि अब तक बहुत ज्यादा अर्ली स्टेजेस में नहीं बट अब तक कितना पैसा म्यूजिक इंडस्ट्री खुद के करियर में डाल चुके हो, तो like the entire music industry नहीं खुद ने मतलब हाँ पर्सनली कितना डाला है? would you consider buying instruments and everything 12-13 lakhs? Damn dude, Astik है 5-7 lakhs. Yeah. What? I thought you had your own studio. तो स्टूडियो का भी तो स्टूडियो टाइप ही है ना, I haven't invested too much अभी तक उसमें. Now I wanna do it. और एक अच्छा एक डिसेंट स्टूडियो का हम क्या बोलते हैं, कितना रहता है? Like 15 lakhs, 20 lakhs? यार ये तो इसको ज़्यादा पता होगा टेक्निकल साइड में for sure. Decent studio, first of all it depends कि decent studio क्या है. There are people जो कि बिल्कुल गराज में बैठ के ऐसा म्यूजिक, there's this artist called Mac DeMarco भाई, वो अपने गराज में म्यूजिक बनाता है. There's like literally ऐसे अजीबोगरीब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो उससे रिकॉर्ड करके he is printing money right now. And there are people जो कि हाई क्लास स्टूडियोज में जाके भी वो काम वापस नहीं रिपीट कर पाते. भाई डिपेंड्स ऑन who's working on it. But अगर एक बेसिक स्टूडियो सेटअप है तो you need like at least 3 booths, one like maybe 3 इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना है? So मैं बता रहा हूँ ना, 3 booths is like पहली बात तो space is you'd have to buy a space. मैं उसको हटा के it will be like around 10 lakhs 15 lakhs easy. This is the average setup ऐसे देखें. And I'm talking about like starting से. हाँ. कुछ starting से शुरू कर रहा हूँ. जैसा मेरा एक ओपिनियन पूछना ऐसे क्वेश्चन कि अभी जैसे AI आ रहा है राइट, यू कैन इवन ट्रेन योर ओन वॉइस टू द AI एंड वो AI बना रहा है. तो डू यू थिंक लोगों को स्टूडियो की जरूरत भी पड़ेगी अब? और इट्स लाइक कि एक बार जाओ एक बार ट्रेन करो खुद की वॉइस से AI को. मेरे हिसाब से खर्चा कम हो जाएगा बट एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे. बट ऑलरेडी हो गया है लाइक अभी भी डॉ पे सब कुछ कर लो, यू डोंट नीड टू एक्सपेंड अ लॉट. जैसे पहले प्रोडक्शन के लिए सब जगह जाना पड़ता था एक इंस्ट्रूमेंट पर. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Confused as hell about that because क्योंकि let me think about it actually भाई. मेरे को actually इसके बारे में इतना मालूम नहीं कि AI का स्कोप कितना है, मुझे अभी यही नहीं पता है. Can it produce
like 30 minutes of worth of a symphony. Yeah. And it produced. अभी ऐसा जैसे you used Midjourney ऐसा कुछ अभी तक? नहीं. Yeah. मैंने I have. तो अभी म्यूजिक में भी ऐसा कुछ है कि you give it command कि तुम्हें क्या चाहिए exactly, it can produce beats exactly like that. नहीं, but there's a time limit right now ना. अभी है बट वो Yeah. But 3-4 साल में considering कि लास्ट ईयर से अभी Yeah. तक AI कितना डेवलप हो गया है, तो आई डोंट थिंक इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम इनफैक्ट एआई में अब ऐसा है लाइक एआई किसी का भी आवाज सुनता है, उसको सैंपल्स मिलता है एंड देन आप कुछ भी लिरिक्स डालो वो आई Kendrick वाज की आवाज वाचिंग में- दिस रील. You can sing. मैंने भी जो जितना देखा था कि आप एआई के इसमें आप कमांड्स देते हैं, फॉर एग्जांपल केंड्रिक की बात करते हैं, तो अब वो पूरा का पूरा उसी की आवाज में ही लाइक मेक इट साउंड कि वो उसने Yeah, I was watching this Tanmay wala reel. So what he did was he was sitting with someone and they were exploring AI platforms. So he went on 3 different sites. एक site से he produced a beat similar to Eminem's music, like he gave him like 2-3 songs and उससे similar कुछ उसका निकला. And then एक साइड से ही produced Eminem की आवाज में कोई rap and एक साइड से ही produced the lyrics. तो like हाँ, and then he made a song on a different platform and it was full AI and it sounded just like Eminem. डूड एआई में तो देखना पड़ेगा, म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है. इसका एक ग्राइम्स ग्राइम्स इलोन मस्क की है. Yeah. उसने ये करा है कि उसने अपना वॉइस का वो भेज रॉयल्टी टाइप कर दिया है कि यू कैन मेक एआई से मेरी वॉइस में सॉन्ग और 50-50 ओपन स्प्लिट रखेंगे. यू कीप 50%, आई कीप द 50%. आई थिंक दैट्स अ This is ग्रेट थिंग इन smart. द म्यूजिक. This is smart. मेरा एक और से डिस्कशन हो रहा था, यू नो लविश भी आप बोलते हैं Elon की Yes, है. yes, yes, yeah. तो उनसे बैठ के मैं यही एआई का डिस्कस कर रहा था. इट्स लाइक कि ये सब भले कितना भी हो जाए, द एक्चुअल थिंग दैट कम्स डाउन टू इज परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है. इफ यू कैन कीप द क्राउड एंगेज्ड, एंड आई थिंक दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज. पहले भी थी, अभी भी रहेगी और आगे भी. बट वो तब है ना जब आप यू आर डूइंग लाइव शोज. वो तो करना ही पड़ेगा. हाँ. नहीं That is the but ultimate experience तुम्हारा of music. सॉन्ग भी like it won't catch on ना until अगर it's हाँ, like that. अगर वो Like अगर लाइव उतना ज्यादा Kanye जब किया था कॉलेज ड्रॉप आउट और वो सब, तो his whole thing was कि make anthems कि like everyone gets hooked on it. तो like Kanye वैसा ने philosophy एक अलग ही लेवल, एक अलग इंडस्ट्री चालू कर दी थी उसने जो उस टाइम पे ला रहा था. आई मीन मेरे को he was different bro, he was different. क्रेजी भाई. उसका कॉलेज ड्रॉप आउट एल्बम वाज अमेजिंग. अभी भी you listen to it, it's one of Yeah. the best albums. और जब तक आप म्यूजिक सुन रहे हो that Kanye का, trilogy- you are okay. म्यूजिक खत्म हुआ उसके बाद आप Kanye की तरफ देखोगे. Not the right time to follow. Kanye तक ठीक था, ये तक नहीं था. ये तक But yeah, man, insane like what he's done, and even Jay-Z and all these like legendary rappers, what they've done with like the business side of it, it's insane, man. These guys have become billionaires because of all of this. But there's also one thing na कि if you remove the labor of making anything, clutter इतना बढ़ जाता है, इतना music clutter हो जाएगा कि like how do you sustain out of it? How do you actually promote? So promotion would need much more power than what right now we are putting into it. नहीं but at the same time यार छोटे छोटे पॉकेट्स वाले लोग ना अपना अपना म्यूजिक पर ढूंढने लगते हैं. फॉर एग्जांपल के पॉप. आई मीन कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश भी इतने टाइम से अच्छी नहीं आती है, वो इंग्लिश सॉन्ग तो छोड़ वो अब के पॉप ही सुन रहे हैं जिसका उनको कोई लेना देना ही नहीं है भाई. Dude, मेरे को तो बहुत heavy doubt है कि they only listen to it ये because- कुछ Controversy coming in. controversy alert. It's like soft porn, man. Honestly, Please explain yourself. honestly, okay. Having Utkarsh on was a good decision. Okay. So the music that's going on in any K-pop song is basically American, right? Okay. Everything's just Americanized as hell. Okay, they are not using their traditional instruments or anything. The lyrics that's going on, it is like you don't care about that, right? You don't care. You don't understand most of it. Yeah. Only Korean people are understanding, or people who can speak Korean can understand it. Other than that, you're just watching the videos for 5 hot pieces of men dancing. Not or मतलब women भी है. Yeah, like but they are so good looking that you're constantly hooked on what they're doing, how hot they are, how beautiful they are, and then there are contents that they create besides music. Then you're hooked on that. You just wanna watch them eat something. Basically glamour stuff like बिक that. रहा है. No, Yeah, but so- this is government pushed. If you know, like delve into their lifestyle, बचपन से ही they've been trained to become Yes. They're groomed. So this अच्छा is, मतलब yeah. उनकी गवर्नमेंट राइट. Yeah, their government Yeah, is yeah, pushing the K-pop Yeah. music so it can become famous और फिर tourism वगैरह सब बड़े. Exactly. काफी music, the music podcast if you follow that, अरिजीत सिंह का manager runs that podcast. तो उसमें भी वो he says that कि if Indian
गवर्नमेंट स्टार्ट डूइंग दैट. अपने पास भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, अपने पास रिसोर्सेज बहुत सारी है. वी हैव लॉट ऑफ टैलेंटेड अपने पास बस जेनेटिक्स नहीं बस. मतलब भाई देख भोजपुरी ऋतिक वाला रोशन है. जैसे लोग निकल सकते तो कोई ना कोई तो होगा. but that is actually true. Like एक स्पोर्ट्समैन का जर्नी अगर 8 या 9 साल में स्टार्ट हो जाता है, तो जो K-pop और ये सारे फील्ड वाले हैं वो लोग 9-10 से मतलब वो शोज पे जा रहे हैं, कुछ टैलेंट शोज पे जा रहे हैं, दे आर गेटिंग मनी, उनको क्लासेस दी जा रही हैं, हाउ टू डांस, हाउ टू कैरी Yeah. और ये रिकॉर्ड लेवल के लिए भी बहुत अच्छा डील होता है एक्चुअली. Because marketable है ना फिर, marketable है. उनको तो लाइक टैलेंट ही मिलते जा रहे हैं ना फिर यार उससे. क्योंकि ऐसे ना म्यूजिशियंस की थोड़ी सी इंटेग्रिटी आ जाती है. मैं लड़ सकता हूँ रिकॉर्ड लेवल से कि नहीं मुझे ऐसे ही प्रोड्यूस करना है, भले ही रिकॉर्ड लेवल थिंग्स और नॉट कि ये चलने वाला है ना, पर उनको अपना प्रॉफिट देखना है. उनको ऐसा ही सॉन्ग निकालना है व्हिच गोज एंड टॉप्स द चार्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो दे वांट समवन दे कैन कंट्रोल, यू नो, दे कैन PR the shit out of. So that's very good if they groom it from the beginning, you know, groom them from the beginning. मेरा एक क्वेश्चन है, अब जैसे कि कोई भी म्यूजिक हम बनाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट यूट्यूब. आप यूट्यूब पे जाते हो, वीडियो बनाते हो, उसका अर्निंग वाइज क्या पोटेंशियल रहता है? लाइक इज इट टू टफ टू क्रैक दैट थिंग? हाउ मच मनी डू यू मेक? I think we should tell this. भाई मैं तो कुछ नहीं बना रहा हूँ for sure. नहीं, बट लाइक तुम चार्ट्स देखे होंगे ना कि यार इतने व्यूज चाहिए मुझे. बट यू हैवंट completed the criterias ना उसमें. हाँ वो भी है. Yeah. एंड लाइक कितना है, यू गेट पेनीज, लाइक ऐसा कुछ Yeah, बहुत for sure, पॉइंट्स में for पैसा sure. मिलता है, राइट? बट तू सोच ना, लॉन्ग टर्म में इट्स अ डिजिटल एसेट दैट्स मेकिंग यू पैसिव इनकम. तो अगर आपका अभी भी अपन कई बार जाके 10 साल पुराने सॉन्ग्स होते हैं, 10 साल पुराने वीडियोस देख रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स अ गुड डील इन दैट सेंस कि आपका कोई भी सॉन्ग एक बार एक्सप्लोड हुआ तो द एंटायर कैटलॉग इज गोना गेट अफेक्टेड बाय दैट. उसके कारण यू आर मेकिंग पैसिव इनकम फ्रॉम दैट. बट यार तुझे नहीं लगता कि इनिशियली इट शुड बी अ लिटिल बिट मोर, जितना अभी है उससे ज्यादा? यार आई डोंट नो. बिकॉज़ यार अगर तू 30 इयर्स बाद तभी सर्वाइव करेगा ना, इफ यू आर मेकिंग मनी टुडे इन प्रेजेंट. मतलब ये भी हो सकता है कि YouTube तुझे अगले 10 साल के लिए पेमेंट करे, 10 साल के बाद ना करे. बट स्मॉल आर्टिस्ट जितना मैंने देखा है कि दे हार्डली मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट. Yeah. Then you have to like look दूसरे Yeah, चीजें, yeah, yeah. you have to like go play Bollywood music, क्योंकि कितने लोग हैं musicians हैं जो कि अपना म्यूजिक ही प्ले करना चाहते हैं. बेसिकली अपना सिस्टम ही ऐसा बना है कि इट्स डायरेक्टिंग यू टुवर्ड्स हाँ, बॉलीवुड. मतलब आपको पेनीज मिल रही है. कोई साउंड क्लाउड का क्या है ऑप्शन, लाइक हाउ डज दैट वर्क? साउंड क्लाउड पे भी अभी चालू हुआ है कि जब स्टार्टेड पेइंग रॉयल्टीज. उससे पहले नहीं था. जब तक स्पॉटिफाई नहीं था साउंड क्लाउड वाजंट पेइंग. जब से स्पॉटिफाई स्टार्टेड पेइंग, एवरी म्यूजिशियन इज लाइक गिव अस मोर. बट उससे पहले देयर वाज नो ऑप्शन फॉर रॉयल्टी स्ट्रीमिंग सर्विसेज. तो साउंड क्लाउड व्हाई, लाइक साउंड क्लाउड क्यों फेमस था? बिकॉज़ एनीबॉडी कैन पुट. एग्जैक्टली. आई थिंक तो पोस्ट मलोन और Spotify ये पे सब नहीं भी होता उस था पे ही ये? आए. स्पॉटिफाई तो पॉपुलर नहीं था. अच्छा. SoundCloud पे तू अभी पर्सनली खुद अपलोड कर सकता है कुछ भी, बट इस पे देखो डिस्ट्रीब्यूटर लगेगा. डिस्ट्रीब्यूटर विल पुट देयर एंड दे विल गेट द मनी फॉर यू, यू नो. तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ऐसा था कि पहले जब CDs डिस्ट्रीब्यूट होती थी तो दे यूज्ड टू सेंड इट टू डिफरेंट स्टोर्स. फिर वो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए, तो उनने सारे ये YouTube म्यूजिक और Spotify और जितने अलग अलग है, टाइडल है ना, XYZ, उन पे पर्सनल अपलोडिंग पॉसिबल नहीं है ना. YouTube पे जैसे YouTube पे हो सकता है, sorry. वैसे म्यूजिक में नहीं कर सकता, तो यू हैव टू गो थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर. बट दिस थिंग SoundCloud पे तू पर्सनली अपना ऑडियो अपलोड कर सकता है. इट वाज फॉर लाइक आर्टिस्ट की डिस्कवरी एंड स्टफ लाइक दैट, कि आप अगर बहुत बडिंग आर्टिस्ट हो तो यू कैन जस्ट पुट योर म्यूजिक एंड गेट डिस्कवर्ड समवेयर. आई थिंक Adele or someone got discovered like that. Post Malone got example. Post Malone. That story itself Yeah, is yeah. crazy. बट अगेन लाइक व्हाट यू वाज सेइंग कि लाइक एक करियर के नीचे 1000 है और जो नहीं बने, लाइक दैट इज, आई थिंक दैट वाज लक. तो लाइक डर नहीं लगता है क्या? बहुत. हाँ, you still question yourself? Every day bro, but I'm at a point कि मुझे ऐसा लगने लगा there are not many things that I'm really good at this age that I can monetize. तो ऐसा भी हो सकता है कि after a while I'm just like fuck everything. मैं ऐसे म्यूजिक ही करता हूँ because this is what I know and I'm getting good at it. So kind of betting on it. But it's also like कि धीरे you grow anyway. कि आप अगर 10 साल से गेम में होते you will have some audience. That's true यार, like उसमें करियर में बहुत ups and downs है. बट इट्स लाइक इट्स ट्रू फॉर एवरी आर्टिस्टिक फील्ड. इट्स लाइक स्ट्रगल ज्यादा एंड पैशन ज्यादा लगता है, वरना यू वोंट सर्वाइव. कि market only pays you for what they want. या Following passion is you doing it for yourself. There is no need for any of that. अगर अभी आज ड्रेक मर जाए, होना ऐसा, बट उसके प्लेस लेने वाले बहुत सारे लोग. It's not like कि लोग पागल हो जाएंगे कि यार ड्रेक का म्यूजिक नहीं है. Even at that point, world will live So like without. an example would be a famous Indian rapper who died recently.
क्या नाम था उसका? I He forgot. was famous then. नहीं अरे this अरे यार सिद्धू Oh, मरा नाम तो sorry मार दिया। I forgot. हाँ। अरे तो उसके लिए भी मरा मरना तो जरूरी है। what a dumb thing to say. मेरे को लगा कि मर गया वरना ऐसी नेचुरल डेथ हो गई। तो that is like an example of this कि like a lot of rappers were there to take his place. Yeah. But he was ऐसे भी he was a legend anyway. Like, Yeah. वो काफी help करा था community. Yeah, That's yeah. why he got the status he was at. But सिद्धू मूसेवाला was like a shocker मतलब मुझे कभी भी नहीं लगा था कि after T series वाला जो गुलशन जो भी उनका वो किसने मार दिया था like you know बॉम्बे अंडरग्राउंड जो भी है उसके बाद ये वापस से क्राइम यहाँ पे बॉलीवुड में ऐसी चीज होना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ यहाँ पे भी हो रहा होगा बट तुझे क्या लग रहा है उसका क्या फॉल्ट क्या था मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई। You're not, like, following मुझे क्या अभी उसको? बस एक रीसेंट न्यूज़ पता है मेरे को मूवी नहीं पता वो हुआ कि नहीं पर उसकी मॉम ने एक नया बच्चा कर लिया है दे आर गोइंग yeah अंडर द सेम नेम और some shit like that. too much pressure too much ये pressure सब क्या हो रहा है bro? उसका What is this? नहीं so you don't know I don't know जो this. उसके पेरेंट्स है उसकी लाइक वो हाँ। उसकी मॉम अभी प्रेग्नेंट है अभी उन्होंने लाइक डिलीवर किया है अब वो उसका भी नाम सिद्धू रखेंगे. जूनियर संधू I don't know man. वो क्या है वो पूरा डील तो मुझे नहीं पता but it is going. Crazy यार. shit क्या क्या कर लो. But he was huge, huh? Like even like international artists and everyone like respected him a lot as a. yeah he did a lot of community work जैसा अपने रास्ते के ने बोला मतलब कुछ ज्यादा ही भाई वो अरे यार मेरे को मुझे ना लाइक एक क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि इज मेजॉरिटी द प्रूफ ऑफ गुड म्यूजिक यू नो लाइक मेजॉरिटी No. लाइकिंग यू इज इट अ प्रूफ बिकॉज़ भाई फॉर श्योर आई कांट से दैट फॉर टेलर स्विफ्ट यू नो या आई जस्ट बिकॉज़ यार टेलर स्विफ्ट के फैंस ने तुझे एक बार बैन करा दिया ठीक है तो मेरे को चला तू थोड़ा रुक रहा है टेलर स्विफ्ट के बारे में बोलने से हाँ मैं थोड़ा hesitate कर रहा हूँ भाई. हाँ ठीक है नहीं इट्स गुड हमको बैन नहीं होना. If I say this, the podcast remains हाँ of course the yeah ban निकलेगा. अलग entities बोल है बोल बोल बोल. But fuck टेलर स्विफ्ट what क्या there are a few problems with what I see there. Okay. पहली चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि she just doesn't make good music. okay that is Very it of course हाँ. That is your personal Personal, opinion. हाँ. ठीक है yes okay हाँ. I can base it. Okay. हाँ. Personally, सिर्फ repetitive forms और repetitive lyrical ideas ही चल रहे हैं. If you listen to 10 different songs, it will be the same idea कि love story, breakup or something like that. In fact, उसका promotion का style has been the same in past 1 decade or something. You know, she'll start dating some celebrity, she'll make songs, love songs and stuff. Then some ups and downs will come. She'll start making some weird ass conspiracy songs ki like you were with this girl or that girl, and then the breakup will happen, and then she'll start dissing the guy. And this has been like for 10 different guys that she has dated, it has been the same pattern. Bro, इसमें sorry to interrupt. I feel like ये अपन men perspective से सोच रहे इसलिए ऐसा लग रहा है because the way women connect to her, Yeah. it's on a different scale altogether. Like, no female artist has influenced women like Yeah, that. exactly. as a businesswoman no questions Of course, bhai, of course. she's killing it Yeah, amazing Yeah. पर्सनल ओपिनियन हो सकता नहीं पसंद है या फिर कुछ लोगों को पसंद है That is again that is सबको पसंद नहीं आते सब लोग. That is different. But हाँ I get that point कि like perspective is different. क्या? अल्ताफ राजा सबको पसंद था अरे बाप रे So like मेरे को एक question था ये कि like when you sit and like write rap like what is your process like how do you like because rhyming करना and then making sense of it and then वो flow में होना कि like इसके बाद ये आए like ऐसे flow हो proper या यार मैं तुझसे पहले पूछना चाहूँगा व्हाट्स योर प्रोसेस लाइक यार बहुत ही मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं सॉन्ग राइटिंग के. जैसे मेरे को रैप का तो कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि कभी लिखा ही नहीं है. मैंने सॉन्ग स्ट्रक्चर्स में लिखा है सब कुछ वर्स कोरस टाइप स्ट्रक्चर्स थे सारे. तो उसमें तो वर्सेस आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक यू नो एंड देन यू रिपीट द टॉपिक. Okay. कोरस है ना. कोरस का मतलब ये है कि एवरीबॉडी इज गोना सिंग टुगेदर एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कोरस. एंड वर्स का मतलब ये है समथिंग डिस्क्रिप्टिव. अब उसमें राइमिंग स्कीम्स कैन बी मल्टीपल. यू कैन राइम द लास्ट वर्ड
each time. Yeah. उसके साथ बहुत there are some like वो patterns बहुत होते ज़्यादा हैं, experiments. ठीक है. उसमें कोई मतलब combination का कोई ऐसा limitation ही नहीं है. It's like beats, like you can Yeah, बहुत you keep types की, writing हाँ. and you're still writing and अभी नया content आते ही जा रहा है. Okay, yeah. अभी भी if you sit down to write, you can write something completely new that has never been written. Because there are so many Topics. factorials, I think. तो जैसे cards का deck होता है ना, हाँ. तो it's 52 factorials because there are 52 cards, right? हाँ. 52 factorials में combination के numbers इतने हैं कि पूरी human history में same cards कभी repeat नहीं हुए. ठीक है, same structure जो भी उसके sequence of cards जो है वो कभी repeat नहीं हुए. और ये सिर्फ 52 factorial है. अब in music, first of all, language का factorial है, topics का factorial है, music beats का factorial है, music styles का factorial है, personal essences का like इतने permutation combination बन सकते हैं कि lifetime चल जाए. Yeah, there's हमेशा there will be something. Yeah. तो structure मतलब basically chorus and then Verse, chorus. There are sometimes there's this thing called bridge. Okay? So bridge is like a small segment जहाँ तुम अपने pattern से break ले लेते हो. तो verse chorus ये बहुत अभी थोड़ा guess कर सकते हैं अपन कि verse chorus फिर से आ जाएगा या something. तो वो बहुत अगर predictable हो जाता है तो थोड़ा boring हो जाता है. Bridge में you go somewhere else completely. And then there are outros where you know kind of fade away or something like that. what about you? मेरा वो प्रोसेस चेंज होता रहता है. पहले जब मैं था आई यूज्ड टू फ्री स्टाइल ऑन द बीट्स कभी कभार, और उसमें कुछ ऐसा राइम स्कीम निकल के आ गया, फ्लो निकल के आ गया, तो उसी पे मैं बिल्ड करते रहता था. अभी है कि आई लिसन टू बीट, उस पर आई हम केडेंस फिगर आउट कर रहा हूँ, एंड देन बीट के हिसाब से व्हाटएवर आई फील लाइक कि यार इस पे ये टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं, एंड देन आई स्टार्ट बिल्डिंग इट फ्रॉम देयर. सिंपल प्रोसेस. So like पहले क्या था, like पहले lyrics और उसके ऊपर म्यूजिक, या फिर म्यूजिक जैसा रहता है उसके ऊपर रैप? म्यूजिक जैसा रहता है उसके ऊपर. नहीं तो अदरवाइज क्या होता है ना कि इफ आई स्टार्ट राइटिंग एंड देन आई ट्राई टू फाइंड द बीट्स, कई बार ऑफ बीट जा सकते हैं, इट वोंट फिट प्रॉपर्ली. बट इफ आई एम राइटिंग ऑन बीट देन इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड कि दिस इज हाउ द बीट इज गोइंग, और उसके ऊपर मुझे पूरा लिरिक्स बिठाने हैं, मेरा फ्लो बिठाना है, एंड देन तो टेल मी वन थिंग दो. या तू लिरिक्स लिखता है तो तू पहले रैंडमली ही सब कुछ बोलता है, देन यू फिगर आउट कि दिस इज व्हाट द सॉन्ग इज गोना बी अबाउट, या पहले से तेरे दिमाग में आइडिया होता है कि दिस बीट चालू करते से ही ना आई काइंड ऑफ हैव वो नैक की क्या क्या व्हाट कैन आई टॉक अबाउट, या मुझे क्या फील हो रहा है, एंड उसके बाद आई ट्राई टू जस्ट बिल्ड अ केडेंस ऑन इट, ऐसे कुछ भी रैंडमली स्प्लिट करके और या फिर हमिंग करके, एंड देन आई स्ट्रक्चर इट प्रॉपर्ली. फिर आई स्टार्ट राइटिंग द फर्स्ट लाइन. जैसे फर्स्ट लाइन जॉट डाउन हो गई, आई नो कि इस पे ऐसा फ्लो बैठा है फर्स्ट लाइन का, एंड देन आई बिल्ड इट ऑन दैट. और अभी मेरा प्रोसेस ये हुआ है आफ्टर राइटिंग अ लॉट कि हर आफ्टर 4 bars आई ट्राई टू चेंज द फ्लो. तो उससे क्या जो भी मोनोटनी रहती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो इट्स लाइक कंप्लीटली नोवेल्टी हर बार. तो मतलब तेरे दिमाग में ऐसे पहले से कोई टॉपिक नहीं होता है? ना, नेवर. मतलब कई बार होता भी होगा, बट कई बार आप फील भी कर रहे होते हो कि यार मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार दिस इज व्हाट आई कैन टॉक अबाउट या कुछ भी, बट एज सून एज अ बीट कम्स वो समटाइम्स इट डजंट फिट प्रॉपर्ली. हाँ. So it has to बट go. स्पेशली यार रैप में ऐसे कि मतलब मैं काफी ज्यादा सुनता हूँ. मैंने ये देखा है कि यार कई बार लाइक बड़े लेजेंड्स की बात करो तो कई बार कुछ वर्ड्स और कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो कि रिपीट होते जा रहे हैं, क्योंकि रैप में होता है ना कई बार कि 2 लाइन एक के बाद एक आती है, रिपीट होती है. बट रैप म्यूजिक में कई बार ऐसा नहीं लगता कि यार व्हाट इफ ये चीजें किसी ना किसी ने बोली हो इसी स्टाइल में, या फिर इसी, क्योंकि आप राइम करना चाह रहे हो, राइट? लाइक कॉमेडी की, लाइक सेम जोक नहीं हो हाँ, जाए मतलब गलती से. सेम ना हो जाए, क्योंकि यार आप राइमिंग स्कीम्स जहाँ पे बात करते हो आपको ए से राइम होने वाला वर्ड ही चाहिए नेक्स्ट. मैंने कई बार ऐसे म्यूजिक सुने जो कि सेम लाइन होती है दोनों की, तो उसमें थोड़ा अजीब नहीं लगता कि यार व्हाट इफ किसी ना किसी ने रैप कर रखा हो एग्जैक्टली 18 लाइन. आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी है दैट इज कंप्लीटली न्यू. हाँ, एवरीथिंग इज बिल्ट ऑन प्रीवियस वो आर्टिस्ट हैज मेड. क्या है, बुक है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, उसमें यही बोलता है कि जो तुम सोच रहे हो ऑलरेडी हो चुका है. तो यू हैव टू जस्ट अपने पर्सपेक्टिव से उसको बोलना है. और जैसे राइम स्कीम की बात है, कुड बी एन आर्टिस्टिक चॉइस एज वेल, कि कुछ एम्फसाइज करना है कि यार दिस इज द लाइन दैट आई रियली वांट टू एम्फसाइज अगेन, तो वो एक और बार बोल दिया, 2-3 बार और बोल दिया. दैट्स द पॉइंट ऑफ कोरस एज वेल, कि यू वांट टू कनेक्ट एवरीवन, और फिर उसी को 2-3 बार बोले तो एवरीवन नोस कि अब क्या बोलना है. बस वो जो अभी आस्तिक की जो बात बोल रहा है ना, वो आइडिया की बात कर रहा है. एज एन आइडिया लव पे बहुत लिखा हुआ है, ठीक है, और ऐसे आइडियाज पे बहुत सब कुछ लिखा हुआ है. बट अगर तू 50 साल पहले के लव सॉन्ग्स उठाएगा तो पूरा लिंग्विस्टिक जो पैटर्न है वो इतना डिफरेंट है कि अब इफ यू राइट इट बहुत नए वर्ड्स, बहुत नए स्लैंग्स के साथ विल राइट ना, तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा वो. तो अब इशू ये आता है विद आई थिंक रैप तो कि देयर इज सो मच
lyrical content in just one song, and then there's a like this entire genre. You know कि I would also be confused कि यार you know But ये तुम है कि नहीं है. लोग उस इस इंडस्ट्री में जहाँ पे this is our second language, right? English. Yeah. To go like आप internationally कैसे करोगे? Because you will always have that जो Accent. Europeans और बाहर वाले लोग हैं जो कि बता पाएंगे कि हाँ यार this is like not English, this is Indian accent. Especially rap में like उसको लेके क्या है कि मतलब do you mold your language according to it? और pronunciations और जो flow होता है जैसे rap में तो उसको change करने की कोशिश कर रहे हो, करना पड़ता है या आपने सोचा नहीं इस बारे में इतना? तू बोलते थे. भाई I feel कि if your pronunciation is good, then it's all good. Because I listen to a lot of black artists, मुझे कई बार नहीं समझ आता कि वो because their pronunciation is Exactly. different. At the same time when Eminem came, उसका pronunciation of phonics इतने clear थे, I was like, okay, I can understand this, even if it's not the first language that I speak. Apart from that, I would also say if your song is sonically good, Despacito या कुछ भी Spanish song ले लो, they've permeated the entire world, bro. Yeah. The music is any art form is such a thing that it brings you together, and music I feel is that kind of thing that brings you together. So if your song is good, if the melody is good or anything, आप उससे connect कर जाओगे ऐसा. I think Afrobeats and all these are like nice examples of this because Afrobeats and all this African music is a nice example because even their English is their second language or third language or whatever. So they're also getting famous like this and उनके भी pronunciations. We talk about like I'll go back to that jeans वाला चीज. Black people को आप कहाँ compete करोगे dude? Fashion हो, music हो, कुछ भी हो. Yeah, but see, The world Eminem was did so that, na? jealous of them, they tried to enslave them. I think it was a. इसके यार इस पे अलर्ट डालने पड़ेंगे. भाई जल्दी famous हो podcast वाला. नहीं but it's actually true यार. अरे but like ऐसा नहीं like I feel like कि ऐसा नहीं है bro. Like Eminem is the best example. Like he came into a industry that was dominated by African American people at That's the an time. exception, man. नहीं It's not an exception यार. कुछ कितने legends मानते हैं उसे but उस टाइम पे भी there was some crazy black artists उस टाइम पर भी Black Thought and Tupac ये सब crazy like हाँ Eminem is an exceptional because कहीं ना कहीं white audience को बहुत ज़्यादा मिला लेकिन वहाँ पे भी कई लोग थे black peoples में जो कि उसको Eminem को सुनना पसंद नहीं कर रहे थे. They're like यार he's a guest. Yeah. We have bigger legends. तो ऐसा चीज रहा है हाँ मतलब yeah but eventually he got to that status ना कि like भाई he's not there's a accepted respect. अभी भी उसको question कर ही रहे हैं 2 decades से हाँ question कर ही रहे हैं उसको. But you were in London. वहाँ पे कैसा क्या था music? यार वहाँ पे it was more British rap. British rap is pretty cool yeah. It's so different but it's so nice the like accent yeah itself exactly is so tasty for some reason. You know, it hooks you. Man. Yeah, so British rap वहाँ पे काफी ज़्यादा if we talk about hip hop and all that. बाकी जो normal songs हैं वो हैं. But वहाँ पे dude it was so tough understand करने के हिसाब से इतने artists मैंने वहाँ पे देखा है H और Dave D. Central C. Amazing Central artists. Central C but like he's killing it bro. Dude, that language is very fresh. That whole music is very fresh. एकदम crazy beats. But it's a whole different world like इतनी चीजें like once you get into it ना UK rap it's like so much. ऐसे all music genres are the whole world. मतलब ऐसे अपन कोई भी genre में घुसते ना it's like कि अब पूरा discovery करो starting से. The fact that you will never be able to complete any of them. You know, you can only be briefly introduced to any genre. अब इन सारी म्यूजिक में हमारे म्यूजिक का क्या फ्यूचर है मतलब अब आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स लाइक हम तो मेजरली इंडिया में सारी कल्चर्स को लेके आप वेस्टर्न की तरफ ही बढ़ रहे हो बट फॉर एग्जांपल गजल्स अब इट्स डेड राइट तो और कौन सा जॉनर लग रहा है हम मिस करने वाले हैं गजल्स के अलावा और क्या था हमारे पास यार इंडियन क्लासिकल म्यूजिक था हाँ म्यूजिक है बट आई थिंक वो क्या है ना कि यार म्यूजिक ना हमेशा टेक्नोलॉजी से बहुत हैंड इन हैंड ही चलता है ठीक है जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी 800 साल पहले समथिंग वी वर ओनली सिंगिंग राइट एंड देन यू काइंड ऑफ created an instrument, you start playing it, you know, bongos were the first instrument, and then piano got created and you start playing that and you started incorporating that. अब computers हैं तो we have started incorporating that. तो these music styles are not dead, they are just अभी वो उसी style में है जो पिछला style था. You can convert ghazal into something new, you know, like
हाँ like गजल का remix बना Remix तो थोड़ा राखी सावंत को नचवा दी उस पे अरे यार नहीं मतलब हो सकता है like हाँ like Indian classical tunes इतने सारे हैं जो अब use होते हैं normal songs में and remixes में like Nuclear इतना try करता है use करने का so like it's evolving अलग ही जर्नी है न्यूक्लिया का मतलब उसने कितना स्पेसिफिक साउंड इंडिया का मिक्स करके वेरी इजी थीस मतलब क्या चल रहा है उसका भी गायब हो गया bro I think अब maybe I don't know come up again man वो ऐसे वापस से रिसर्च करके फिर से आना पड़ता है ना मतलब ऐसे वही सेम शिट कब तक बनाओगे आप थोड़ा सा पॉज देकर but it was working for him like एक टाइम तक तो बहुत चला but I think we just grew out of it but then I think Ritviz वाला स्टाइल ज्यादा वो हो गया था ऋत्विज के बारे में मैं बात नहीं करूंगा वो एक ही गाना गा रहा है बार-बार see so then you can say this about AP Dillo also then like a lot of people think कि सारे songs same है उसके but he's collaborating with Stormzy now so like crazy artist if it's working then why not do it it's very hard to ऐसे conceptualize और digest कि इंडिया का म्यूजिक सीन चल कैसे रहा है like Ed Sheeran was playing with Diljit and Sia have a song where Sia is singing in Punjabi like उस level पे आ गए this Punjabi guy who is into Japanese rock in Japan and I was like what the fuck is going on man well he's like quite big there I'm like crazy क्या चल रहा है I have no fucking conception of this thing man. Japanese rock Japanese form or I don't know the genre but yeah something Japanese yeah and then he's also doing it in India sometimes Delhi में और अगर इंडिया में अगर म्यूजिक करना है फॉर एग्जांपल इंदौर तो बहुत ही छोटा सिटी हो गया मुंबई और दिल्ली को छोड़ के कहाँ है जहाँ पे कल्चर बन रहा है डिपेंड्स ऑन जॉनरा पे जैसे आई वुड से सेवन सिस्टर्स जो पूरा है म्यूजिक कल्चर फैशन कल्चर इज टोटली डिफरेंट और प्रोबेबली इवन बिगर वी हैव इट हियर वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवन प्लेज इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट एवरीवन नोज गिटार या कुछ भी तो म्यूजिक कल्चर देयर इज बिग ब्रो इवन हिप हॉप इज बिग देयर नहीं बट अगर यहाँ पे ग्रो करने के हिसाब से यार समटाइम्स ये वो चीज़ है ना कि जैसे मुंबई में मेजॉरिटी ऑफ आर्टिस्ट हैं और रिकॉर्डिंग लेबल्स हैं तो मुंबई और दिल्ली को छोड़ के ऐसे कौन सा सिटी जहाँ पे यू कैन मूव सो दैट आप उस कल्चर में ज्यादा हो म्यूजिक I think Bangalore has a nice music scene ऐसे I think like जितना सुना है मैंने actually going down there नीचे वहाँ लाइसेंसिंग का डील बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया अभी तो लाइक पीपल आर बिल्कुल या तो ओरिजिनल म्यूजिक गाओ या तो मत गाओ ओरिजिनल म्यूजिक के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आई कैन ओनली ब्रिंग सो मेनी पीपल राइट आई कैन क्राउड ऑन माय ओन मतलब 250-200 लोग अगर आ गए तो इट्स अ बिग थिंग तो इंडियन म्यूजिक के साथ तो यही इशू होता है कि लाइक अ बिग आर्टिस्ट कैन पुल लेट्स से समवन लाइक ओशो जैन ही इज अबव अस but not Anuj Jain level right Anuj Jain is like big yeah so Osho Jain can pull probably like a good crowd 250-300 log in at any gig you know Delhi Mumbai Bangalore wherever but for me it's very difficult or for someone who's living in Bangalore and is a local artist it's very difficult if he's not singing if he or she is not singing the local cover songs like उनकी local language में it's very hard और जहाँ multilingual states होते हैं वहाँ तो और difficult हो जाता है क्योंकि क्राउड आ कौन सी रही है इंग्लिश सुनने वाली आ रही है हिंदी सुनने वाली आ रही है उनको कन्नड़ में सुनना है गाना है समझ रहे हो मैं बिकॉज़ आई वाज इन चेन्नई ना तो इट यूज्ड टू बी सो क्रेजी कि वन टाइम आई हैड टू प्ले आयरिश सॉन्ग्स जो मुझे आते भी नहीं है और मैं बैक स्टेज गया मुझे मतलब 10-15 मिनट का ब्रेक दिया उन्होंने कि तू ये 2-3 सॉन्ग फटाफट कंप्लीट कर और मैंने वहाँ वो सीखे एंड देन आई केम आउट एंड मैंने एक आयरिश ग्रुप के लिए कुछ आयरिश सॉन्ग्स प्ले करे ओनली इंस्ट्रूमेंटल एंड दे डांस एंड दे वर हैप्पी बिकॉज़ इट वाज लाइक सम सेंट पेट्रिक डे और समथिंग लाइक दैट एंड दे वर हैप्पी एंड देन दे लिव्ड एंड देन वी स्टार्ट प्लेइंग बॉलीवुड अगेन so I was like भाई how do I actually stay a musician here which is strict to one genre you know India में that is so impossible ऐसे and that's why you go for either Hindi because majority people will sing Hindi and you go for English because majority people will kind of speak English, you know. So, but what do you think about कि you build your audience in such a way कि you are known with that niche only? Yes, that's then you know कि ठीक है मैं इधर जा रहा हूँ तो I'm not gonna full crowd है. हाँ, correct. But you have to kind of think about it, ना? Yeah, वो तो long term process. वो ऐसे सोच के ही चालू करना पड़ेगा कि what do I do exactly? Because you can take any route अभी अगर मैं तीसरी भी एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो मैं वो भी गा सकता हूँ. मैं हिंदी मुझे आती है तो मैं वो भी गा सकता हूँ एंड इंग्लिश मुझे आती है तो मैं वो भी गा सकता हूँ बट आई हैव टू डिसाइड राइट वेयर एम आई गोना गो तो but talking about the culture and everything like
इधर इंदौर में भी रैप बैटल्स होती हैं कहीं? क्या क्या सीन है ऐसे अंडरग्राउंड हिप हॉप का? क्या सीन बीच में एवरी क्लब ट्राइड देयर बेस्ट टू ब्रिंग हिप हॉप टू, या तो अभी क्राउड नहीं हुआ ब्रो डेवलप. लाइक नो मैटर हाउ मच पीपल आर लिसनिंग टू इट, लोकल आर्टिस्ट को सुनने बहुत कम लोग जाते हैं. दे ओनली वांट द बिग आर्टिस्ट. पियानो प्रोजेक्ट, कोई भी क्लब उठा लो, दे ट्राइड इट फॉर 2-3 वीक्स, पीपल शोड अप पहले, देन इट स्टार्टेड डाइंग डाउन बिकॉज़ दे डोंट नो द सॉन्ग्स, तो क्या ही करेंगे आके. हाँ ये भी है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो यार सैटरडे संडे को यू वांट लाइक टू हैव अ गुड नाइट ना. या बट ठीक है, क्या And थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन भी है ना उसके अंदर कि एकदम से लाइक अ न्यू सॉन्ग डू नॉट रजिस्टर. एकदम से अगर मैं बहुत सारा मेरे को मैं इसके लाइव शो में गया था, लाइक देयर वाज सो मच लिरिकल कंटेंट दैट आई मिस्ड बिकॉज़ आई वाज आल्सो ड्रंक. Because of course you're there, you're drinking, right? You're hanging out with people, you're drinking, and you know like and थोड़ा सा भी distraction होता है, you miss so much that okay फिर मेरे को वापस से to get into what he's trying to say is a little difficult. हाँ, लाइक रैप में समझना भी पड़ता है थोड़ा. And then if it's too much on my head, I would just then you like leave it. पे मैं समझ लेता हूँ, है ना. So it's a little difficult to digest एकदम से. So I think a lot of repeats of that thing would help a lot मेरे हिसाब से कि भाई अगर जैसे बहुत सारे shows हो रहे हैं and then I start recognizing songs, that's very important. And that's why I think rap के साथ तो business strategy wise तो it's like internet game completely man. You have to push it on internet. You know, एक बहुत जनरल, जैसे अगर मैं अनुज जैन का कोई गाना गा रहा हूँ तो वो इतनी सिंपल लिरिकल फॉर्मेट है उसका और इतने सिंपल कॉर्ड स्ट्रक्चर्स हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के गाऊंगा यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना. यार एक और ये है कि when you have live instrument, like if you're playing, it's a different ball game altogether. Yeah. It helps build the entire live structure ज़्यादा अच्छे से. रैप में अगर if I'm just rapping, it's ठीक है, it's one experience, but कुछ है इंस्ट्रूमेंट मेरे पास सिंफनी है ना, एटलीस्ट लाइक आप कुछ तो कर सकते हो, आप ऐसे करो, कुछ भी करो. टफ जॉब. So, करें? Yeah. Okay. So guys, thanks for coming on the podcast. Loved it. Like great insights. And yeah, let's have you guys back एक और बार for music and to see what's going on. And yeah, thank you guys for watching and keep liking, sharing and subscribing. Thanks.